Yes, this is the lecture 2 of the dual nature of the radiation, and this is a very important and very famous experiment given by the Davison and Germer experiment. This is the experimental demonstration of the wave nature of electron. यानी इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं. ये डेविसन ने कॉन्सेप्ट तो दे दिया था, लेकिन इसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन डेविसन और जर्मर ने लैबोरेटरी में किया. तो ये एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन गन है, मैंने लिख भी दिया है सारा, पहले फिगर देख लीजिए. तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन गन. इसका फिलामेंट आप को गर्म करेंगे, जब ये गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा. नाउ लेट अस सी वन बाय वन. इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट टंगस्टन कैथोड, सी जो है वो कैथोड है, कैथोड सी आर एक्सीलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस V between C and anode, between C and anode. A narrow hole in the anode renders the electrons into a fine beam of the electrons and allowed to strike the nickel crystal. The electrons are scattered in all the directions by the atoms in the crystal. The intensity of the electron beam scattered in a given direction is found by the use of a detector. अगर आप फिगर को अच्छे तरीके से देख लेंगे ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये एक एंगल पे डिटेक्ट होते हैं. By rotating the detector about an axis through the point O, the intensity of the scattered beam can be measured for different values of phi, that is the angle between incident and scattered direction of electron beam. क्या कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ, measured for the different values of the phi angle between incident and the scattered direction of the electron beam. Fifth point है, the graph is plotted between the phi and the intensity of the scattered electron beam. तो आप देखेंगे एट 44 वोल्ट पे आपका इस तरह का ग्राफ आया, एट 48 वोल्ट पे इस तरह का, एट 54 वोल्ट पे ये 50 डिग्री यानी कि मैक्सिमम इसका जो स्लोप आया है वो मैक्सिमम आया है. एट 60 वोल्ट पे ये फिर कम हो गया है. तो ये जो जिस पे मैक्सिमम आया है ये रिजल्ट निकल क्रिस्टल यानी कि एक्स रेज से टैली करता है. इफ़ intensity of the electron beam in a given direction is proportional to the distance of the curve from the point O, the point of scattering in that direction. Following inferences can be drawn from the above experimental curves. Intensity of the scattered electron depends upon the phi angle of scattering. Always a bump or a kink occurs in the curve at phi is equal to 50 degree, angle which the scattered beam makes with the incident beam. The size of the bump becomes maximum when accelerating voltage is increased, that is it is maximum for 54 volt. The size of the bump starts decreasing with further increase in accelerating voltage. Explanation इसका देख लीजिए. The selective reflection of the 54 volt electron at an angle of 50 degree between incident and the scattered beam can be termed as the diffraction of electrons from the regularly spaced electrons of the nickel crystal by virtue of their wave nature. So theta is equal to 1 by 2 180 minus phi, phi is equal to 50. इसको देखने के लिए आप फिगर ज़रूर देख लेंगे ठीक से. तो थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 180 माइनस 50 आ जाएगा, एंड 1 बाई 2 इंटू 130 दिस इज 65 डिग्री. अब ये जो 65 डिग्री एंगल आ रहा है ये अगर हम कंपेयर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ब्रैग्स लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा n इज इक्वल टू 1, वी हैव 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू लेमडा. तो n फर्स्ट डिग्री या फर्स्ट ऑर्डर अगर हमें लिखना है तो n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तो और 2 डिग्री लिखना है, सेकेंड ऑर्डर लिखना है तो n इज इक्वल टू 2. तो इट इज़ द 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू लेमडा.
अब फॉर द निकल क्रिस्टल अगर हम ये देखें कि डी की वैल्यू कितनी है, यानी कि जो स्पेसिंग है निकल क्रिस्टल्स के बीच की स्पेसिंग है वो है 0.91 ऑंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 0.91 इंटू साइन 65 डिग्री, ये 1.66 ऑंगस्ट्रॉम कैलकुलेशन से आ जाती है। नाउ वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हेंस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस विल बी कंफर्म इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन accelerated through 54 volt comes out to be just 1.66 angstrom. As the two results are in remarkable agreement, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था उसकी जो अपने वेवलेंथ निकाली है, तो वो उसके साथ भी लैम्डा जो आ रहा है वो 1.65 एंगस्ट्रॉम आ रहा था, और जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 1.66 एंगस्ट्रॉम आ रही है। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, ये रिजल्ट जो हैं वो रिमार्केबल इन द एग्रीमेंट हैं। द एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिशेस द वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर एंड ऑफ अ पार्टिकल इन जनरल। तो ये पता चल गया कि इस डेविसन जर्मन ने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट में होता है तो उसकी जो वेवलेंथ आती है वो वेवलेंथ ब्रैग्स के एक्स रेज डिफ्रैक्शन पैटर्न से मैच करती है। वो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम वो ब्रैग्स के डिफ्रैक्शन पैटर्न से एक्स रेज के लिए, तो एक्स रेज क्या हैं, वो वेव्स हैं, और इलेक्ट्रॉन से जो आप मूवमेंट से आप लैम्डा ले रहे हैं वो पार्टिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं जिनकी वेवलेंथ 1.65 एंगस्ट्रॉम आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये एक्स रेज के ब्रैग्स डिफ्रैक्शन पैटर्न से ये दोनों रिजल्ट टैली करते हैं। अब नाउ यू हैव टू जस्ट स्टडी द फोटो इमिसिव सेल ओनली, एंड this is not essential. If you just want to study, you can study the experimental determination of the Planck's constant, but it is not very essential. But the photoemissive cell in your course, so you can study it from any book or any reference book or the NCERT. It is very clearly given. That is why I am not explaining this topic to you. Thank you very much, children of class 12th.